Hello, good morning, students. Welcome to e-learning. We are learning Chapter 7 Indian Economy of Standard 11th Economics, and we have completed 5 lectures in it. We have learned about the India before independence, and we are learning about Indian economy after independence. In that, we have completed 3 topics, that is per capita income, agriculture sector, and the industrial sector, where we have seen in per capita income we have a per capita income of $5,150 per year per person, which has been earned, or if it has been distributed, our national income has been distributed among the peoples of, as per census 2011, we can say it is 5,150, which is very less compared to the other developing countries like China, like we can say it is 11,477, like Sri Lanka, that is neighboring country, like $9,250 which they are having. So we can say compared to the other countries, other developing countries, our country, the per capita income is very less. So because of this, there is a little bit backward in the growth of the economy India. Now coming to the next part, that is agriculture sector, which we have studied. In that we have seen the employment which was 72% in the year 1950-51, which has decreased to 49% in 2011 and 12. Again, when we talk about the share, it was having more share, or we can say it has a good amount of share in agriculture sector, where agriculture sector was the primary need, but it has decreased and it has gone lower and lower. Talking about the industrial sector, the third one which we have learned in the previous lecture, that is the share of employment given by the industrial sector in 1950-51 was 10.6 percentage, which has increased to 27 percentage. Now when we talk about the share of national income, we find that the industrial sector was 16.6 percentage, which has increased to the we can say nearly 24.3 percentage. And lastly, when we talk about the export, so when export was be done in 1991, 1950-51, we find that the export was mostly the agricultural products or agricultural crops, allied activities, all these things were being, we can say, two-third of it. But now industrial sector, industrial product is been two-third of it. So this is what we can say, there has change came from agriculture. There is a shift which came from agriculture sector to the industrial sector. Now today's topic, it is the same, we are going to continue, and there are 5 more points in this, that is India as a developing India after the independence. So in the 6th lecture we are going to learn about Indian economy after independence, that is after the British rule, part 2. So talking about the service sector, which is the third sector, that is first is agriculture sector, second is the industrial sector, and third is the service sector. So when we talk about the service sector, we can say the share of employment means at the time of 1950-51, we find that the employment was given by the service sector was 17.3 percentage, which has increased by 25.2% in 2001. Again it has increased to 27%, मतलब वो बढ़ते गया. कौन? एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर सामने बढ़ता गया, और इसके साथ साथ कौन बढ़ता गया? वी फाइंड दैट सर्विस सेक्टर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल इनकम, अगर हम जीडीपी की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, इसके अंदर हमारा सर्विस सेक्टर का योगदान कितना है? सो इन 1950-51 इट वाज 30.3 परसेंटेज विच वाज देयर, विच हैज़ इंक्रीज टू 38%, मतलब मोर देन 1/3% जो शेयर था टोटल नेशनल इनकम में, वो किसका था? सर्विस सेक्टर का था. मतलब बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशंस, नॉट टेलीकम्युनिकेशन बट वी कैन से बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब स्टार्टेड हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने लगे. सो ऑल दिस सर्विस सेक्टर started growing along with the industrial sector. And when we talk about 2001, the half of the national income coming from the service sector, that is 50.4 percentage of share is been coming from the, we can say, service sector. And lastly 2014-15 it is 52.7. so there are 4 years data, लेकिन आप याद रखो 1950-51, 2001 एंड 2014-15. तो कहने का मतलब अगर ये याद रखोगे तो आपको अच्छे से प्रॉब्लम नहीं रहेगा. सो 4 डेटास याद नहीं रहेंगे तो एटलीस्ट 2 ईयर्स के डेटा, बट 1951 में कितना था और लास्ट अपडेटेड 2014-15 में कितना था, तो भी पता चलेगा. लेकिन कोई बार बीच में से क्वेश्चन आ जाएंगे कि 50% कैसे हो, नहीं तो 2001, 2000
में कितना था. So 50.4% is was the share of service sector in the total national income, or we can say GDP. Now we can say this particular has growth very well. क्यों growth हुआ? Because इसके ऊपर एक पूरा next chapter है हमारा, that is इकोनॉमिक रिफॉर्म. 1991 के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी जिसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें, मतलब फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पे आके खोल सकते हैं, खोलने के बाद वो लोग यहाँ पे अपना योगदान दे सकते हैं, इसकी वजह से सर्विस सेक्टर बढ़ गया. सो वी फाइंड दैट सो मेनी कंपनीज इन दी इंश्योरेंस, सो मेनी कंपनीज इन द डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडिंग. तो ये सब चीज़ बढ़ गया बिकॉज आफ्टर 1991 पॉलिसी. So that was a revolutionary change which has been brought during that era, and because of that we find that इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. एंड इसका चेंजेस हम देख सकते हैं कि ज़्यादा शेयर, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा इनकम, ज़्यादा शेयर ऑफ नेशनल इनकम कहाँ से आ रहा है? दैट इज़ फ्रॉम द सर्विस सेक्टर. क्लियर? सो दिस इज गिवन द मोर ग्रोथ और फास्टर ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द सर्विसेज. टॉकिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो वी ऑलरेडी नो दैट आवर इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट. बट वो कैसे ग्रो हुआ, पहले कितना था और अभी कितना है, वी डोंट नो दैट पर्टिकुलर डेटा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, वी फाइंड दैट इसके वजह से आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो चुका है बिकॉज ऑफ मोर ऑफ पॉपुलेशन. एंड एट विच वी आर इंक्रीजिंग एट द वी कैन से 1.5% एट द रेट. आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो वी फाइंड दैट 1.5% से एवरी ईयर ग्रो कर रहे हैं. तो 1.5% अगर 1 करोड़ का भी करो, 10 करोड़ का भी करो, तो भी कितना हो जाएगा? सो वी आर मोर देन 100 करोड़. सो एवरी ईयर कितने लाखों लोग हमारे यहाँ पे, कितने करोड़ों लोग यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं. अगेन इट लीड्स टू दी, इट सिग्निफाइज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? नाउ यहाँ पे ये वर्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है कि वी फाइंड दैट आवर बर्थ रेट्स आर मोर, बर्थ रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं और डेथ रेट है वो कम हो रहे हैं. बिकॉज ऑफ गुड मेडिकल फैसिलिटीज डेथ रेट्स आर गेटिंग लोअर, एंड बिकॉज ऑफ द मोर वुमेन एम्पावरमेंट एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से, पॉपुलेशन की ज़्यादा होने की वजह से भी we find that the birth rates are more and more. So this particular gap, the gap between the more increase in birth rate and the less death rate, we find that there is an increase of people. So that people which are been increased is also called as population explosion. मतलब यहाँ पे ये जो रेशियो मैच नहीं हो रहा. अगर डेथ रेट सिर्फ 7% है, बर्थ रेट इज़ 22%, तो 22 माइनस 7 15%, तो 15 लोग तो ज़्यादा हुए. सो 15% रेशियो इज़ गिविंग एनुअल इंक्रीज. तो ये हमारा इंक्रीज करे कि भाई हर 22 चाइल्ड बर्थ हो रहे एवरी आवर, तो 7 लोग मर रहे, तो लेकिन पर आवर 15 लोग भी तो बढ़ रहे हैं ना. तो ये चीज़ होता है. सो वो हमारे इंडिया के अंदर ये देखा जा रहा है. अगेन व्हेन वी टॉक द पॉपुलेशन, तो it is not written here, but you just remember that 1950-51 it was 36.1 करोड़. कितने? 36.1 करोड़ 1950-51 के अंदर थे, विच हैज़ इंक्रीज टू 102.7 करोड़ इन 2001. एंड फर्दर सेंसस 2011 के डेटा के हिसाब से 121.02 करोड़ इज़ द पॉपुलेशन फॉर इंडिया. अगर करंटली बात करें तो 138 पॉइंट समथिंग है, 138 करोड़ इज़ अ पॉपुलेशन फॉर प्रेजेंटली विच वी फाइंड. बट ये नहीं लिखना है, करंटली हमको नहीं लिखना, हमको यही दिखाना है कि इट वाज 102.7 करोड़ इन 2001 एंड 121.02 करोड़ इन 2011. अगर 1950-51 पूछ लिया जाए तो याद रखना, मेक अ नोट, 36.1 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन वाज देयर. सो यहाँ से इंक्रीज हुआ कि कहाँ पे 36.1 करोड़, कहाँ पे 2001 में इसका ट्रिपल हो गया. नहीं तो वी कैन से इट इज़ बिकेम इट हैज़ ग्रोन 2-3 टाइम्स मोर. तो 100 करोड़ अचीव कर लिया हमने बहुत जल्दी, बहुत फास्ट रेशियो के अंदर. सो दिस इज़ व्हाट मेक आवर ग्रोथ फॉर द इकोनॉमी लेसर एंड लेसर. इसकी वजह से हम ग्रो कम कर रहे हैं बिकॉज पर कैपिटल इनकम डिवाइड हो रहा है, नेशनल इनकम डिवाइड हो रहा है. तो ये वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. Coming to the next point, that is poverty. So poverty, when we talk about poverty, poverty मतलब क्या? गरीबी रेखा. गरीबी रेखा किसे बोलते हैं भाई? When a person is not able to earn the money
फॉर डेली बेसिस, नहीं तो डेली बेसिस के अंदर जितने पैसे चाहिए उतने पैसे भी नहीं अर्न करें, नहीं तो इतनी सैलरी नहीं हो रही महीने पर में, सो दे आर कमिंग अंडर दी poverty. So those people who are not able to fulfill their daily meals or cannot able to earn that for their daily meals is coming under the poverty. Now, so we find that there are so much absolute poverty. यहाँ पे दो टाइप के poverty आते हैं जो आप नेक्स्ट ईयर 12th में सीखने वाले हो. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब एग्जैक्ट पॉवर्टी, ये लोग पॉवर्टी के अंदर ही आएंगे. जैसे गरीब लोग आप देखते हो, दो आर हु आर begging and all that, they are already coming under the poverty. They are absolute poverty. They are not doing any kind of work, just begging and earning their bread. That is not the thing which should be done. Again, we find that those percent of people or population which are living below poverty line आर डिक्लाइन. मतलब कह रहे कि जो पहले के टाइम की बात करें तो पहले के टाइम पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे परसेंटेज ऑफ पीपल थे जो पॉवर्टी लाइन के अंदर थे. मतलब एक स्टैंडर्ड रेट बना दिया है. We have set a standard that this much income should be the minimum income, and if this income उससे कम में आ रहे तो वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, सो BPL उसको बोलते हैं. यू मस्ट बी अवेयर बिकॉज ये लॉकडाउन कोरोना की वजह से देयर आर सो मेनी BPL APL कार्ड्स अबाव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन की कार्ड्स है आपके पास. तो उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट राशन देती थी महीने भर का फर्स्ट 3 months ऑफ द लॉकडाउन. सो दिस particular thing you must be in. So this is गरीबी रेखा, that is poverty line which is been also known. So पहले के टाइम पे ये रेशियो बहुत हाई था, लेकिन अभी के टाइम पे परसेंटेज कम हो गया. मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज कम हो गया. बट व्हेन वी सी एज पर द पीपल पॉपुलेशन इतना बड़ा इंक्रीज हो गया, तो उसके सामने पब्लिक भी इतना इंक्रीज हो चुका है. So here the data starts from 1973-74 where the 54.9% was people, 54.9 मतलब 55% ऑफ पीपल वर अंडर पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन. BPL में कितने लोग आ रहे थे भाई? 55% पीपल आ रहे थे 74 की टाइम की बात करें, विच हैज़ डिक्लाइन टू 45%, 45.3% इन 93-94. मतलब 20 साल के अंदर 55 से 45 हो गए, ऐसे याद रख लो. अगेन इट हैज़ डिक्रीज टू 2004-2005 के अंदर 37.2% एंड लास्टली 21.2%, दैट इज अप्रॉक्स 22% इट हैज़ बिन डिक्रीज. तो 55 से 22% डिक्रीज हो चुका है हमारा पॉवर्टी लाइन इन परसेंटेज वाइज कंपेयर टू दी पॉपुलेशन. बट आवर पॉपुलेशन हैज़ ग्रोथ वेरी इमेंसली. 100 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हम, 125 करोड़ वो लोग मोदी जी बोलते हैं. सो वी फाइंड दैट in this particular 125 crore people, that is 125 crore of people, we find that 22%, उसका 22% निकालो and find out करो कितने how many people are under or below poverty line. So you will get to know. So we find that numbers याद कर लो कि numbers के हिसाब से उस टाइम पे population कितने थे और उसके हिसाब से 55% कितना हो रहा था, और अभी के population के हिसाब से 22% कितना हो रहा है. So this is what we find that the data says that poverty percentage has decreased, but when we talk about the number of peoples it has increased. जो यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ. Again the next point, that is the unemployment. ये जो पॉपुलेशन है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों पे पूरा नया चैप्टर आपको 12th के अंदर आएगा इकोनॉमिक्स के अंदर. सो दिस इज ऑल थिंग्स यू विल लर्न देयर, दैट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेटाज आर बीन कैलकुलेटेड, सब कुछ. सो हियर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ बिन सिग्निफिकेंट. मतलब हमको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है ज़्यादातर इंडिया के अंदर. स्ट्रक्चर नहीं तो डिस्गाइज, स्ट्रक्चरल नहीं तो डिस्गाइज. मतलब डिस्गाइज मतलब जो फार्मर्स लोग हैं, फार्मर्स की एक फैमिली, एक फार्मर अगर फार्मिंग कर सकता है, उसके अंदर 2-4 भाई लोग भी आगे और वही फार्मिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कोई प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा. when we find that one person is farming or he is doing the farming activity and he can handle it, but still the other cousins or other siblings comes to join together and there is no further increase in the production, that time we can say that that particular production where one person was able to do, now 3 or 4 people are doing together and still the production remains same. So that 2 or 3 people who are added is called disguise, and because उन लोग की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ नहीं, वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन वी कैन से प्रोडक्शन की वाइज देखे जाए तो हमको दिखता नहीं है. सो दैट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट उसको भी बोलेंगे. नाउ इन 1951 33 लाख पीपल्स, उस टाइम पे कितने पीपल्स थे?
36.1 crore total population was there. In that 33 lakh people were unemployed. मतलब वो लोग काम ही नहीं कर रहे थे, उन लोग को काम मिल नहीं रहा था. They are willing to do work but they are not getting the job. Unemployment मतलब those people who are willing to do the job but they are not able to get the job. They are having eligibility criteria, सब कुछ. So ऐसे कितने लोग थे? 33 lakh people were been there. Again, when we talk about the NSSO, that is National Sample Survey Organization, they have done a survey and we find that in 1999 or 2000, 7.31% of total population are unemployed. और वो इंक्रीज हो चुके, डिक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीज हो चुका है 8.2% एज पर 2005 एंड 2004 एंड 5. अगेन इट हैज़ डिक्रीज, बाद में 2004-5 के बाद वो डिक्रीज हो के 6.6% पे आया and further it has decreased to 5.6% in 2011. So we have to remember that 7.31 से 8.2 गया, 8.2 से 6.6 and 6.6 से 5.6% पे decrease हो चुका है. So only one time increase and then after decrease was been seen. So this is how unemployment was been there. लेकिन अभी की बात करें वो पूरा situation अलग है. Because of this pandemic situation there are so many unemployed. Now rural areas के अंदर disguised unemployment ज़्यादा दिखेंगे. So there is a more percentage rate of disguised unemployment in rural areas because I have given you the example कि भाई एक फार्मर फार्मिंग कर रहा है, उसके अंदर 2-4 जन और आ गया और सेम प्रोडक्शन हो रहा है, तो 2-4 जन आने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे. उसके उल्टा क्या होगा कि उन लोग का इनकम डिवाइड हो जाएगा 2-3 भाइयों के बीच में. सो दिस इज़ व्हाट दैट द इनकम हैज़ डिक्रीज. वही प्रोडक्शन, वही इनकम, 1% कमाना था, वही इनकम अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3-4 भाइयों के बीच में एंड हमारा ने वो इनकम टोटल कम हो चुका है. लास्ट पॉइंट वी कैन से human development. So there is a HDI, human development index, which has been measured. So human development index, so हमको क्या पता चल, it includes average life expectancy. हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट और वी कैन से एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक सिटीज़न का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसके कैलकुलेट करने के लिए वी टेक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ लिविंग फ्रॉम द बर्थ, मतलब जन्म से लेके मरण तक उसका कितना एवरेज लाइफ होता है, एवरेज पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो जैसे इंडिया की बात करें, इट इज़ 68 ईयर्स एट प्रेजेंट. व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट, how many persons are there or percentage of people are there who are literate or we can say who are educated or who are ग्रेजुएटेड. तो ये परसेंटेज हमको पता चलता है कि कितने एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है लिटरेसी रेट से. देन आफ्टर जेंडर रेशियो टॉक्स अबाउट दी हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर पर 1000 मेल्स, कितने फीमेल्स है 1000 मेल्स के हिसाब से. Then after infant mortality rate, infant mortality means infant मतलब baby, that is 0 to 1 year of baby, that is called infant. Mortality rate मतलब death rate. So how many percentage or how many per 1000 babies, how many babies are getting death, मतलब 0 से 1 ईयर के बीच के अंदर ये जो 1 ईयर का गैप है उसके अंदर कितने हज़ार बच्चों जो जन्म लिए उसमें से कितने मर रहे हैं. So that is infant mortality rate. So all these some of different rates are taken together, ratios taken together, and there is one index which has been made that is called Human Development Index. ये भी बहुत different types से बना है, ठीक है. सो पहले इसको अलग, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग रेट देखते थे, लेकिन अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया जिसके अंदर ये एवरेज लाइफ, लिटरेसी दैट इज नॉलेज और कैन से एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, जेंडर रेशियो, इन्फांट मोर्टेलिटी रेटेड, ये सब चीज़ हम देखते हैं. सो इन दैट ऑल्सो वी फाइंड दैट आवर इंडिया इज रैंकिंग एट द लेसर टाइम. देन हमारा लोअर रैंक चल रहा है. कैसे लोअर रैंक चल रहा है? इन 2000 इट वाज 0.463. ये है ना 0. मतलब 1 में से निकालते हैं 1.000 में से. सो पर 1000 इट इज़ बीन कैलकुलेटेड एंड वी फाइंड दैट in 2000 this human development rate was 0.463. 2010 after 10 years it has gone above 0.5, that is 0.547. 12 के अंदर 554, 13 के अंदर 586. So we can say that we are gradually increasing our human development indexes, but it is still ranking lower, where our India ranks at 136th rank human development के
डेवलपमेंट के अंदर इतनी सारी कंट्रीज़ है, कितनी कंट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा, मोर देन 200 कंट्रीज़ आर देयर, वेयर 187 countries are registered, and in that 187 countries we find that we are ranking at 136th of rank. So we are at the very low rank we can कंपेयर टू दी ह्यूमन डेवलपमेंट रेशियो के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से हम बहुत पीछे चल रहे हैं. सो आवर एवरेज लाइफ इज़ लेस, आवर लिटरेसी रेट इज़ लेस, आवर इन्फांट मोर्टेलिटी इज़ मोर. सो ये सब चीज़ें हमको प्रॉब्लम करती है. क्लियर? सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स आर जस्ट ब्रीफ नोट. इसके ऊपर पूरा चैप्टर, पूरा बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक्स है जिसके अंदर आपको बताया जाएगा. नाउ ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट year, that is in the 12th standard, where all the different chapters will talk. There are 3 chapters already I told, that is population, poverty and unemployment. Again human development you are going to learn in the second chapter. ये सब चीज़ें आपको सिखाए जाएंगे in detail in the 12th standard, but brief note you have to remember some of the data at presently for this chapter, because this chapter is also important for you. I hope you have been understood. If you still find any doubt, queries, if you फील दैट डेटाज याद नहीं रहे तो 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो. सी देर इज़ नो ईजी टेक्निक टू रिमेंबर. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू राइट. फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट अप कंटिन्यूसली. तो 2-3 दिन, 1-2 हफ्ते करोगे तो आपको मुंह पे आइडिया आ जाएगा. क्लियर? इफ़ यू स्टिल फाइंड एनी डाउट यू कैन जस्ट कॉल और मैसेज मी ऑन माई नंबर. थैंक यू.